Good morning, students. Myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Continue my class 12th. Now last chapter, application of derivatives. Exercise 6.1 हम already कर चुके हैं. Now second exercise 6.2 based on increasing and decreasing functions. Generally, we can find the function is increasing and decreasing in given intervals on the real numbers. अभी तक हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम इसके बेसिस पे फाइंड आउट कर रहे हैं. सपोज वन फंक्शन इज गिवन इंटरवल x1 and x2 where x1 x2 r belongs to r. If x1 is less than x2 according to एनी नंबर उसके बेसिस पर सेकेंड नंबर के बेसिस पर अगर लेस देन है तो नाउ फंक्शन इज आल्सो लेस देन, सो वी कैन से दैट फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग. बट इफ x1 इज लेस देन x2 then function fx1 is greater than fx2, then we said that function is decreasing. For example, suppose one function is given fx equal to 7x minus 3 on real number r. So, suppose we let x1 and x2 belongs to r. According to this function, first we let x1 is less than x2. So you say that according to this one, 7x1 is also less than 7x2. हमने क्या किया? फंक्शन के अकॉर्डिंग मुझे 7x चाहिए, तो रिक्वायरमेंट टू द गिवन फंक्शन मल्टीप्लाई टू द 7 on the both sides. x1 is less than x2, then 7x1 is also less than 7x2. If x1 is greater than x2, then 7x2 is also greater than x2. Now subtract 3 on both the sides. 7x1 minus 3 and 7x2 minus 3 is also less than. And if greater than, so 7x1 minus 3 is also greater than 7x2 minus 3. So finally we said that 7x1 minus 3 is given by fx1 and less than this is fx2. क्या किया आपने? First we let x1 is less than x2 and fx2 is less than x2. So according to this one, we said that function is increasing. Similarly, we can show that the function is decreasing. This value, this method is known as a real method जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं. But according to differential is the very simple. Is the first we define according to theorem 1. मैं एक बार थ्योरम्स को डिफाइन कर देता हूँ कि डिफरेंशियल के बेसिस पर हम फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे शो करते हैं. बुक में गिवन है ऑलरेडी, पर एक बार मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ. लेट एफ बी इज अ कंटिन्यूस. यहाँ पे जो भी फंक्शन हम ले रहे हैं वो ऑलरेडी कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस. कंटिन्यूस है तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा. तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस ही है और उनको अपन को शो नहीं करना है. ऑलरेडी वी लेट द फंक्शन एफ बी ए कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो ओपन इंटरवल में कन्वर्ट हो जाता है. देन फर्स्ट पार्ट f is increasing. हम उस फंक्शन को इंक्रीजिंग कब कहेंगे? Then in closed interval, if f dash x means differential of given function with respect to x is greater than 0 for every element. For each element x belongs to open interval x comma a comma b. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? फंक्शन f इंक्रीजिंग उस बेसिस पे होगा अगर f dash x is also greater than 0, अगर वो पार्ट greater than 0 है. नाउ सेकंड पार्ट b, डिक्रीजिंग हम कब कहेंगे? फंक्शन f इज डिक्रीजिंग
in closed interval AB, if f dash x means differential of function given function with respect to x is also less than 0 for each element x belongs to open interval a comma b. तो easily greater than 0 and less than 0, greater than 0 इंक्रीजिंग के लिए और लेस देन 0 डिक्रीजिंग के लिए। और अगर फंक्शन इक्वल टू 0 आ जाता है दैट मीन्स वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो दैट मीन्स इजीली हम प्रूव कर सकते हैं कि वो फंक्शन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ईच x बिलोंग्स टू e इट दिस फंक्शन f इज कांस्टेंट। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, f(x) इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, इट इज द रियल फंक्शन। नाउ x बिलोंग्स टू r is increasing on r. मुझे शो करना है कि prove that this function for x belongs to r is increasing. तो कैसे प्रूव करते हैं? First write the function f(x) is equal to x cube minus 3x square and plus 4x. So find out f dash x equal to 3x square minus 6x and plus 4. This function for x belongs to r is greater than 0 or less than 0. हमें ये पहले चेक करना है और हमें प्रूव करना है इंक्रीजिंग। तो पहले इंक्रीजिंग के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको फंक्शन को मैं थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस मुझे 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन लेने के लिए काम करते हैं, 4 को ब्रेक कर रहा हूँ, 3 plus 1. We can write 4 as a 3 plus 1. फंक्शन को इस तरीके से ब्रेक करना ये आपको आना चाहिए, उसी के बेसिस पे हम सम को सॉल्व करेंगे। इक्वल टू टेक द 3 as a कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 3 टर्म्स, सो फंक्शन इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड इट इज प्लस 1। लास्ट टर्म ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बेसिस पे आप ये शो कर सकते हैं कि 4 plus 1 that is always plus 1. It is always greater than 0. Now x square minus 2x plus 1 f dash x is equal to 3x minus 1 whole square and plus 1. Function you can factorize x square minus 2x plus 1 is the factor of this function is x minus 1 whole square. Now 3 is the positive plus 1 is the positive. X you take the any value of r, you take the maybe negative, but whole square अगर आप करते हैं तो negative minus into minus is plus. तो हम कह सकते हैं for every x belongs to r, f dash x is always greater than 0. जो हमेशा greater than 0 होगा, और greater than 0 है तो हमने प्रूव कर दिया, so f(x) is increasing. तो ये हमने रियल फंक्शन को किस तरह से हमने इंक्रीजिंग प्रूव किया उसके बेसिस पे मैंने इसको सॉल्व किया। कुछ एग्जांपल्स में सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जांपल्स के बेसिस पर आपको मेथड समझ में आएगा और बहुत ही इजी लगेगा। आगे एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पे आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और उसके बाद में कोई भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में चल रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल is given f(x) is equal to is a trigonometrical function f(x) is equal to cos x, and now prove that decreasing आपको प्रूव करना है। now prove that first is prove in interval 0, pi, इसमें आपको प्रूव करना है decreasing, and second prove that pi to 2 pi आपको प्रूव करना है इंक्रीजिंग, एंड थर्ड 0, 2 pi इसमें आपको प्रूव करना है इज द नॉट नाइदर इंक्रीजिंग और एंड डिक्रीजिंग।
ग्राफिकल अगर अपन देखते हैं, अगर एक फंक्शन यहां से इस इंटरवल से ये वो डिक्रीज होता है और वापस से 0 पॉइंट से वो डिक्रीज होता है, तो फाइनली हम ये कहते हैं कि फंक्शन जो है वो एक बार वो डिक्रीज वापस इंक्रीजिंग, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन ना ही इंक्रीज हो रहा है और ना ही वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। एफ एक्स इज गिवन, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, सो व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डिफरेंशियल ऑफ कॉस इज माइनस साइन एक्स। तो यहां एक काम करते हैं, हमें इंटरवल की अगर बात करते हैं अपन, 0 then now pi by 2 and now pi, and also it is 2 pi and it is you can 3 pi by 2. इसमें आपको जो प्रूव करना है उसमें आपको इंटरवल आपको डिक्रीजिंग इन 0 to pi मीन्स 0 to 2 pi, 0 से आपको सॉरी 0 to pi नॉट 2 pi, 0 से इस 0 से आपको लेकर पाई तक इसमें आपको प्रूव करना है फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज कैसे प्रूफ होता है? तो एक काम करते हैं, x की जो वैल्यू है अगर अपन एंगल के बेसिस पर देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होगा। तो फंक्शन जो है साइन यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स इन 0 to pi, but f dash x sin x जो है ये नेगेटिव है यहाँ पर, तो इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सो माइनस साइन एक्स यहाँ पर ग्रेटर देन, पर यहाँ हो जाएगा लेस देन 0। सो देयरफॉर f dash x f x is decreasing. डिक्रीजिंग इन 0 to pi, तो 0 से पाई हम इसको डिक्रीजिंग प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पाई टू 2 pi, नाउ इन इंटरवल इन पाई टू 2 pi, इस इंटरवल में हम कहते हैं साइन एक्स जो है वो यहां भी नेगेटिव है और इस क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है, तो हमने कहा साइन एक्स इज लेस देन 0, बट माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, एंड माइनस साइन एक्स मीन्स एफ डैश एक्स, एफ डैश इज ग्रेटर देन 0, सो फाइनली एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इन, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, एक बार मैं वापस लिख रहा हूं, इन पाई टू 2 pi साइन एक्स इज लेस देन 0, बट माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन पाई टू 2 pi. तो नाउ यू कैन से दैट फाइनली फंक्शन जो एफ डैश एक्स वो ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन एफ, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 pi, पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में वो इंक्रीजिंग हो गया। क्या देखा हमने? ग्राफिकल की मेथड के बेसिस पे 0 और पाई, 0 से पाई से वो यहाँ पर पहले डिक्रीज हुआ और उसके बाद में वो इंक्रीज हुआ। तो दैट मीन्स हमने ये कहा कि इंक्रीज और डिक्रीज, तो आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ आपने कहा इंक्रीजिंग फर्स्ट एंड यहाँ हमने कहा सेकेंड, सो वी कैन से दैट
from 1 and 2. Function fx neither increasing and decreasing. ये अपन ने एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हमने सॉल्व किया है एग्जाम्पल नंबर की बेसिस पर। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और इसी के साथ में। ऐसा एक एक एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमें सिलेबस को देखते हुए एक बार आगे बढ़ना है अपन को। नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी हमने किया cos x and now next example is find the interval in which the function fx is given. Example number 10. Function fx is given x square minus 4x and plus 6. आपको फाइंड आउट करना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मीन्स फाइंड द इंटरवल ऑफ दिस फंक्शन। समटाइम्स द गिवन फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है, शो करना है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, और कई बार आपको ये फाइंड करना है कि वो किस इंटरवल्स में वो इंक्रीजिंग हो रहा है और किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग हो रहा है। उसके बेसिस पर हमें ये फाइंड करना है कि जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3, तो अगर अपन एफ डेस एक्स फाइंड आउट करते हैं तो व्हाट इज एफ डेस एक्स? इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2x माइनस 4 एंड प्लस 0। Differential of 4x minus 4x. 4x is 4 and x is 1 and plus 6. 6 is the constant, is the 0. Now put f dash x is equal to 0. That means 2x minus 4 is equal to 0. That means finally x equal to 2. अगर हम एक नंबर लाइन के बेसिस पे चलते हैं तो नंबर लाइन पे हम यहाँ माइनस इंफिनिटी एंड दिस इज द प्लस इंफिनिटी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ x इज द ओनली सिंगल वैल्यू, तो यू टेक द वैल्यू इज द पॉजिटिव 2। तो दो इंटरवल आ गए माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड 2 टू इंफिनिटी। ये दो इंटरवल में आपको फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें अगर मैं x की वैल्यू को अगर अपन देखते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से अगर इस साइड में अपन लेते हैं तो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर x की यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी -4 है, और यहाँ अगर आप 1 भी लेते हैं वैल्यू तो 2 से लेस देन ही होगी। 2 से अगर लेस देन होगी तो 2 से 2 इंटू 2 4 होता है। 2 इंटू 2 4, तो 2 से जब लेस देन नंबर लोगे चाहे वो 1 लेते हैं तो माइनस नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन होगा। तो फाइनली मैं ये कहूँगा इन इंटरवल, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इन इंटरवल minus infinity to 2, 2x minus 4 is less than 0. That means f dash x is less than 0. So therefore, fx is, अगर वो less than 0 है तो आप कह सकते हैं fx is decreasing in minus infinity to 2. तो हमने फाइंड आउट कर लिया डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या आया माइनस इंफिनिटी टू 2। अब बात करते हैं इन इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। इस बार आप 2 से बड़ा नंबर लेंगे, जैसे 2 से बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 लिया, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 वो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन होगा। 2 से जैसे 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 के लिए यहाँ हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशियल जो वैल्यू है फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो 2 के इक्वल नहीं ले रहे हैं अपन। अगर 2 के इक्वल ले रहे हैं तो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन हम 2 से ग्रेटर देन ले रहे हैं। अब 2 से ग्रेटर देन चाहे वो 2.1 लो चाहे वो 3 लो, तो वो 4 से हमेशा ग्रेटर देन होगा। 4 से ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन होगी। दैट मीन्स फाइनली हम कह सकते हैं 2x minus 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ
इस इंटरवल में हम कहेंगे 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या कहा, f dash x is greater than 0. So now in interval 2 to infinity, function fx is increasing. हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इंटरवल फॉर दिस फंक्शन फॉर द इंटरवल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो हमने फाइंड आउट कर लिया इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 2 function is decreasing, and in interval 2 to infinity function is increasing. तो increasing और decreasing दोनों के लिए हमने इसका इंटरवल कैलकुलेट कर लिया। तो हमें इंटरवल भी अपन इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी हमने एग्जांपल लिया x square minus 4x plus 6. Okay. Now next example, again find the interval in which the function fx is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x and plus 30 is same way increasing or decreasing. हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर आपका हो गया 11। एग्जाम्पल 11 में आपको फाइंड आउट करना है इन विच इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इजीली सेम वही इसी मेथड के बेसिस पे आपको करना है। फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x और उसको हम इंटरवल के बेसिस पर हम उसको डिवाइड करते हैं। करते स्टार्ट। फर्स्ट फाइंड आउट f dash x। 4 into 3 12x square minus 6 into 2 again 12x minus 72 and plus 30 is 0। डिफरेंशियल, हम डिफरेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका डिफरेंशियल ये हो गया। नाउ डिफरेंशियल ऑफ दिस इज दिस वन, डिफरेंशियल ऑफ दिस इज दिस वन, डिफरेंशियल ऑफ दिस इज 0। टेक 12 इज द कॉमन, 12 is the common, then x square minus x and minus 72 is 6. Take the using the splitting the middle term and find the factorization. 6 is 3 into 2 minus 3 and plus 2. So you take the x minus 3 and x plus 2. एक बार चेक कर लेते हैं। x square and 2x and minus 3x, so minus x and minus plus minus 3 बिल्कुल सही है। अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो 12 is not equal to 0 but these two are equal to 0, so 1 is x minus 3 equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. So what is the value of x? X equal to 3 or x equal to minus 2. टेक द नंबर लाइन, नंबर लाइन के बेसिस पर हम इस फंक्शन को डिवाइड करते हैं माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एंड नाउ इट इज द माइनस 2 एंड इट इज द प्लस 3। तो इंटरवल्स क्या बने आपके, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 एंड माइनस 2 to 3 एंड 3 to इंफिनिटी। आप चाहें तो इसको टेबल के अंदर बेसिस पर आप इसको ले सकते हैं और विदाउट टेबल चाहें तो विदाउट टेबल के बेसिस पे 3 इंटरवल्स आपने फाइंड आउट किए और उन इंटरवल में आपने फंक्शन का आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए इंटरवल। और यहां आप लिखिए साइन ऑफ फंक्शन f dash x और यहां लिखिए नेचर लिख लीजिए, नेचर ऑफ फंक्शन। इंटरवल्स आपके पास में है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, एक बार है माइनस 2 to 3 और नेक्स्ट है 3 to इंफिनिटी। साइन के साथ में, साइन के बेसिस पर हम नेचर ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। एक बार चलो स्टार्ट करते हैं। -2 दैट मीन्स ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये साइन भी माइनस होगा। सॉरी, ओनली टेक द साइन ऑफ दिस। और अगर अपन